We start with today's session. बाकी लोग होंगे भी आगे ज्वाइन करेंगे. So should we start? So today we are starting with another module, Introduction to Machine Learning. Okay. So let's see what are we all gonna discuss today. So in today's session we'll formally define what this machine learning is. We'll see how does it work, because जब तक I believe कि जब तक तुमको core level understanding है नहीं कि behind the scenes क्या हो रही है, because we ultimately while dealing with machine learning we'll be using some libraries like sklearn or something like that. So वहां पे हम सिंपल एक फंक्शन कॉल आउट करेंगे जो भी हमको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना है और वो मेरे लिए परफॉर्म करके दे देगा. बट आई बिलीव कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन, इट इज सिंपली लाइक ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बस हो गया ऊपर से, एंड आई डोंट वांट दैट. ठीक है. देन वील formally see what are the different classifications of machine learning. Then we'll formally बीच में और भी कुछ कुछ points है like. अच्छा चलो, let's start with today's agenda. So let's formally define what this machine learning is. So it as simple as that you have to make machine learn in order to give some expected output. एक लाइन में the definition says कि you have to make the machine learn to get some output. Now the question comes, how do you make the machine learn? Machine को कैसे तुम learn कराओगे? Normal question है, right? Make sense? So see, how do we make the machine learn is as simple as that. You have to allow the machine to learn from experience. Yeah, you have to allow machine to make some patterns, to identify those patterns and make the decision based on whatever you have learned. There is something known as training. You train the machine based on some data. उस पे वो ट्रेन होता है मशीन लर्निंग मॉडल. आगे हम देखेंगे पूरा एकदम वर्कफ्लो कैसे क्या हो रहा है. अंटिल देन आई गेस काफी एकदम एक होलिस्टिक आइडिया मिल गया कि व्हाट दिस मशीन लर्निंग इज. यू हैव टू इनेबल द मशीन टू लर्न ऑटोमेटिकली. इतना हो गया. अब as well as the data goes on, you have to make sure that whatever the performance of your machine is, it improves gradually. ठीक है. बिकॉज जितना ज्यादा वो ट्रेनिंग उसका अच्छा होगा, जितना ज्यादा ट्रेनिंग होगा उसका, it is highly likely, remember the word what I'm saying, it is highly likely, not absolute. It is very highly likely that your machine learning model or the model you are building will give you a better output. Okay. So very important component of machine learning is that you have to make the machine predicts things without actually being programmed on for that cause. What do I mean by this is कि let's say uh, I have this apple which is a Kashmiri apple. ठीक है. If I give my machine learning model this image कि ठीक है, this is an apple, so the machine will identify it and give me the output that okay, this is an apple. Up if I give it an apple which is not Kashmiri, it would be some Australian apple or something, कोई बाहर का apple हो, and if I still feed it in my system, the machine should be able to understand and identify कि हाँ भाई ये एक एप्पल है. हमने उसको ट्रेन सिर्फ कश्मीरी एप्पल के लिए किया था. बट इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट द मशीन could give you, remember हम यहाँ पे probability में बात करते हैं अधिकतर, because machine learning is mostly a probabilistic approach. Sure shot हम कुछ नहीं कह सकते. It all depends on how well you train your model. So we are taking a general case जहाँ पे ठीक है कुछ errors होंगे, कुछ एरर्स होंगे. सो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है, इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट योर मशीन लर्निंग मॉडल कैन आइडेंटिफाई कि ठीक है, आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन कश्मीरी एप्पल, बट ठीक है, कश्मीरी एप्पल के भी कुछ कुछ फीचर्स है जो इस एप्पल में भी मेरे को मिलेंगे. लाइक एप्पल अल्टीमेटली इज एन एप्पल. कश्मीरी एप्पल का हो सकता है लेंथ कुछ चेंज हो, ब्रेथ कुछ चेंज हो, इसका कलर शाइन टेक्सचर कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट मोर और लेस it is pretty obvious that an apple is an apple ultimately. So this is how machine learning works. अब I have this very interesting diagram here. Like people ask, what is AI? What is and how is it different? What is data science? And what are different aspects of AI? So see, you have this a very at this Venn diagram particularly.
we first start with artificial intelligence. ठीक है? It is the best example, the best definition I can say for artificial intelligence is one which is formalized by Turing, in which he says कि you have to give some questions to a machine and you have to accept its output. तुमने मशीन से कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने जो आउटपुट दिया, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि वो जो आउटपुट है वो एक मशीन ने दिया या फिर एक ह्यूमन ने दिया है, देन इट इज एन परफेक्ट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन. अगर तुमसे मैं पूछूं 1+1, a human would say 2, but a machine would also say 2, right? So if you are able to identify as a human कि किसने कौन सा आंसर दिया है, that precisely defines what an artificial intelligence is. Like you should have the ability to learn, you have to reason like humans, but Turing ने जो definition दिया था, more or less we somehow draw its use cases अभी भी. Like for example हम लोग कुछ generative AI model use करते हैं like ChatGPT and something like that. So अगर if we are a human, हम अगर कोई एक पैराग्राफ लिखा होगा, let's say टेक्स्ट का एक पैराग्राफ मैंने उठाया and I put it somewhere, like I asked some question, it defined machine learning for example. ठीक है? So if I get an answer और मैंने किसी let's say उत्कर्ष से पूछा what machine learning is, I have both answers with me. If I am able to segregate कि कौन सा उत्कर्ष ने बोला है कौन सा मशीन ने बोला है, then it is perfect for me. It is perfect for me. बट अगर मैं ये नहीं बता पाऊँ कि दोनों आंसर में किसने उत्कर्ष ने दिया है और किसने मशीन ने दिया है, देन आई वुड बी इन अ पोजीशन टू से कि ठीक है, whatever the output is given by that machine, it is artificially sound, it is artificially intelligent enough. इसका एक कंपोनेंट होता है मशीन लर्निंग, जिसमें you have some algorithmic approach in which you conceive the ability to learn without you actually program your system on that. उसका एक सब टॉपिक होता है कि डीप लर्निंग, इन विच यू यूज न्यूरल नेटवर्क्स. वी लर्न न्यूरल नेटवर्क, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है न्यूरल नेटवर्क, और अभी के टाइम में इट इज़ वेरी हाईली रिसर्च टॉपिक. उसका एक सब कंपोनेंट है इन विच यू ट्रेन योर डेटाबेसेस ऑन न्यूरल नेट्स. See, we have this data science, which is a cross-disciplinary approach in which your aim is to extract some kind of values from a particular data set. Make sense? इसमें आज सच कुछ हाई तौबा वाला बात नहीं, इट इज जस्ट बेसिक फॉर्मलाइजेशन जो है ऐसे ही है. ठीक है? शुड वी प्रोसीड आगे? शुड वी प्रोसीड? गिव मी अ थम्स अप इफ दिस, अगर इतना क्लियर हो गया. अभी आरएन ने लाइक लेट ज्वाइन किया है, कुछ हमने कुछ ज्यादा अभी स्टार्टिंग है, हमने बस कुछ डेफिनेशंस बताया what this machine learning is, and you have this Venn diagram. You can go through it afterwards, I'll provide it to you. So let's start with some few concepts which we would be dealing with machine learning throughout. The very first concept is this algorithm. I don't think कि मेरे को algorithm को define करने का जरूरत है. It is some mathematical procedure जिससे हम कुछ expected output हम चाहते हैं और वो output हमको मॉडल देता है. So we can say an algorithm is something computational procedure whose work is to process data and build some kind of model. ठीक है? अब आते हैं मॉडल क्या होता है. जैसे मैंने बोला मॉडल क्या है. मॉडल है simply whatever the output you are achieving it through a machine learning algorithm, that is a model. इसका aim क्या होता है? It has to make some predictions for the training data set or test data set. Can I get this? Okay, let me first define what training data is. So training data is something which is a label data. We'll learn what a label data is. जिसका काम होता है to make the machine understand the initial learning phase. क्या मैंने मतलब हुआ बोलने का. Let's say मैंने अभी एक एप्पल का एग्जांपल दिया. ठीक है, मैंने मशीन को कुछ इमेजेस दिखाई कि अच्छा इस तरह का अगर इमेजेस हो तो इट इज एन कश्मीरी एप्पल. ठीक है, दैट इज माय ट्रेनिंग डेटा सेट जिस पर मैं मशीन को ट्रेन कर रहा हूँ. मेक सेंस? आया समझ में? अब उसमें मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि अगर एप्पल है, कश्मीरी एप्पल है,
तो उसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर होगा, उसका एक पर्टिकुलर शाइन होगा, लश्चर होगा, कुछ साइज होगा, कुछ शेप होगा, एक पर्टिकुलर शेप। तो ये क्या है, ये उसके अलग अलग फीचर्स है। ठीक है, ये उसका अलग अलग फीचर है। लेट्स से आई हैव दिस पेन विथ मी, इफ आई वांट माय मशीन टू आइडेंटिफाई कि इफ इट इज अ पेन, तो ऑब्वियसली इसके कुछ फीचर्स है। लाइक आगे में कुछ का निब है, वी हैव समथिंग, एक एंगुलर शेप है इसका, एक सिलेंड्रिकल इसका ओवरऑल शेप है, कुछ डायमेंशंस है इसके, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स जिसको तुम मेजर कर सकते हो। लाइक दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, राइट। अगर एक ह्यूमन का इमेज है तो ह्यूमन के पास ऑब्वियसली उसके पास ऑर्गन्स होंगे, हेयर होगा, एक पर्टिकुलर हाइट होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होगा, राइट। मेक सेंस? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर ये इतना कुछ समझ में आया। व्हाट अ फीचर इज, फीचर इज जस्ट सिंपल है जिसको तुम देख सकते हो और जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज है क्या, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन यू हैव दिस लेबल्स। लाइक लेबल्स इज particularly used in supervised learning. ये क्या होता है कि it just tells your model कि if this is the out input, this should be the output. What do I mean by this? कि let's say I have this apple का image. If you get this image, the output is an apple. So the apple here is the label. ठीक है? If I like you are clear with like you are clear while background is blurred. अच्छा हाँ, I'm using my broadcast in media. ठीक है, I guess मैं जो बोल रहा हूँ वो आई गेस अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इफ आई से आई हैव एन एप्पल का इमेज, ठीक है, इफ आई शो इट टू माय मशीन लर्निंग मॉडल, द मॉडल शुड से कि ओके दिस इज एन एप्पल। यही होना चाहिए। अगर एप्पल का इमेज दिखा है तो उसको बोलना चाहिए दिस इज एन एप्पल। अगर मैं कैट का फोटो दिखाऊं तो उसको बोलना चाहिए दिस इज अ कैट। सो हमें जो आउटपुट मिला यहाँ पे, जो हमें आउटपुट मिला यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर लेबल। ठीक है, प्रिटी प्रिटी इजी, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। Now, a very important concept. This is the learning process. The machine learning is a very dynamic procedure. इसमें ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार डेटा दे दिया और वी आर डन विथ इट। हमें जैसे जैसे ज़्यादा डेटा मिलता जाता है हम उतना ज़्यादा फीड करते हैं मशीन को। तो जैसे मैंने बताया कि it is highly likely that the more you train the machine will improve its efficiency, accuracy उसका बढ़ेगा। जनरली मैं बोल रहा हूँ, लाइक हमेशा नहीं होता है, बट प्रोवाइडेड एवरीथिंग गोज वेल, then it is very highly likely that your machine learning model would be able to improve its accuracy जितना ज़्यादा वो डेटा से वो लर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कश्मीरी एप्पल का दो तीन पिक्चर दिखाया सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल को, तो हो सकता है जब मैं उसको टेस्ट करूं एक दूसरे एप्पल के साथ तो वो फेल कर जाए, वो नहीं मेरे को आउटपुट दे पाए। बट इफ आई ट्रेन इट विथ लेट्स से 5,000 10,000 और 1 लाख एप्पल का इमेजेस, ठीक है, हम यही सीखेंगे। लाइक मोस्टली व्हेन वी वुड बी डीलिंग विथ ट्रेनिंग द मॉडल, हम कुछ 2 3 4 5 हज़ार के ऊपर ही बात करेंगे। 5,000 एप्पल का इमेज, 10,000 एप्पल का इमेज और समथिंग लाइक दैट। सो लर्निंग प्रोसेस इज सिंपली द प्रोसेस वेयर द मॉडल improve its performance, where it learns continuously, and this happens over the period of time. लाइक अभी हमने फॉर एग्जांपल टेस्ला का ऑटोनोमस कार, हम टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है, कितने लोग ने देखा है, लाइक जानते हैं उनके बारे में? कैन यू रेज योर हैंड इफ यू नो अबाउट द टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार में जो हम लर्निंग देखते हैं? ओके, मोहम्मद। सी व्हाट हैपेंस इज व्हाट अगर टेस्ला का एक कार है, इफ इट ड्राइव्स अ किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर का डेटा इज अगेन सेंड टू द डेटाबेस। ठीक है, एक कार का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इमेजिन कितना ज्यादा कार है, वैसा लाखों में। हर एक कार अगर 1 किलोमीटर भी चलता है, उसके 1 किलोमीटर का डेटा इज अगेन फेड बैक टू द सिस्टम एंड द मॉडल ट्रेन्स। ये कंटिन्यूअस हो रहा है, रुक नहीं रहा है। if you like we are using let's say chat gpt, if you are using the model, let's say chat gpt 4, अगर तुम उसका फोर्थ वर्जन यूज कर रहे हो which is a dynamic one, chat gpt 3.5 is trained on data till 2021 I guess, but chat gpt 4 is till date। अब हर दिन नया वेबसाइट बन रहा है, हर दिन नया डेटा इंटरनेट पे लोड हो रहा है, राइट। So every data which is loaded to an instant, it is fed back to the system,
so that the model could learn on that. So this learning process is a very dynamic process, and to most extent this is very like long stretch thing, continuously होते रहता है, रुकता नहीं है. एज अ कंपनी इमेजिन करो, वुड यू लाइक कि तुम्हारा जो मॉडल है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपना एक्यूरेसी खो दे? कोई नहीं चाहता है कि उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाए, राइट? अगर मैंने कुछ आउट अभी, आज तुमने कुछ चैट जीपीटी पे कुछ लिखा, आज तुमको अच्छे से आंसर आ गया. अगर 5 साल बाद लेट्स से दिस सिस्टम इज देयर एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सम डेटा, वो गलत डेटा दे, तुम उसको नहीं यूज करोगे, राइट? कोई इसको यूज नहीं करना चाहेगा अगर वो एक्यूरेसी अपना खो दे. ठीक है, मैं पूछ कुछ रहा हूँ, आंसर कुछ और मिल रहा है मेरे को, आई डोंट वांट दैट, राइट? सो वॉट एवर वी वुड बी बिल्डिंग इट अब से, ट्राई टू हैव दिस बिजनेस अप्रोच थोड़ा सा, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसका एक यूज केस है जो कोई बिजनेस में हम यूज कर रहे होंगे. सो आई वुड अग्री कि आई गेस इतना पार्ट सबका क्लियर होगा, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं. क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी. श्रेया, उत्कर्ष, आदि, इज इट क्लियर या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर, परफेक्ट, परफेक्ट. ठीक है. So let's head on to our next slide. Let's see कि in order for a machine to learn, what are the different steps involved? This is what are the different components of a learning process. So पहला चीज जो मैंने बोला, in order to learn something you need some kind of data. मैंने बोला in order to learn something you need some kind of data. अब वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए. देयर इज सम डेटा वेयर हाउस और डेटा स्टोरेज इन विच जितना भी डेटा है तुम्हारा वो कहीं स्टोर होता है. आजकल हम बोलते हैं कि ये क्लाउड में हम स्टोर कर दिए या हम कोई सर्वर में स्टोर कर दिए, तो दीज आर ऑल योर डेटा स्टोरेज इन विच व्हाट यू डू इज योर एम इज टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस दैट डेटा. बस हम वहाँ डेटा स्टोर करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रैक्शन. द नेक्स्ट थिंग इज एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट डू आई मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन इज कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा. गूगल के वेब सर्वर पे बहुत ज्यादा लाइक बिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है? अब हो सकता है कि हमको सब डेटा का काम नहीं हो सकता है ऐसा, हो सकता है जैसे ये ऐसे नो. और जैसे मैंने लास्ट अपने पांडास में जब मैंने पढ़ाया था, सॉरी मैटप्लॉटलिब जब पढ़ाया था, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था ट्विन सिटी का कि लेट्स से वी हैव दिस टाउन और यहाँ पे अलग अलग फीचर हैं, हमको ये फीचर का काम नहीं है, राइट? कोई एक फीचर मैंने ड्रॉप किया था, बताया था आदि आर्य लास्ट सेशन में, बताया था, यस. सो हमारा एम होता है, हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है, हमारा एम होता है कि वी शुड समराइज इट. ठीक है, हमारा एम होता है कि वी शुड बी समराइज इट. हमको डेटा से जितना काम है उतना ही पार्ट हम यूज करें, बाकी को हम यूज क्यों करेंगे? मेरा टाइम लगेगा, मेरा कंप्यूटेशनल एफर्ट लगेगा, जितना ज्यादा कंप्यूटेशनल एफर्ट लगेगा मेरा कॉस्ट उतना ज्यादा आएगा. समझे? समझे? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जीसीपी गूगल क्लाउड, मेरे को अगर इफ आई हैव टू ट्रेन अ मॉडल फॉर 1 आवर आई हैव टू पे 43 रुपीज, समवेयर उसी रेंज में कुछ 43 45. तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है और बहुत ज्यादा डेटा अगर हमको काम है देन आई विल यूज इट. अगर मेरे को सारा चीज चाहिए देन आई वुड बी यूजिंग इट. बट अगर हमको नहीं जरूरत है, व्हाई वुड आई यूज इट? मेरा मेरा पैसा लग रहा है एज अ कंपनी, मेरा मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट? मैं क्यों करूंगा ऐसा? हम लोग भी जो लाइक लास्ट मिनट जब रिवीजन करने जाते हैं, जो काम का नहीं होता हम उसको नहीं पढ़ते हैं. जितना हमको जितना कंसाइज हमको रखना है हम उतना रखते हैं अपना कंटेंट, राइट? जब हम लाइक लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं, ठीक है? तो ऐसे एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच यू हैव टू समराइज वॉट एवर नॉलेज यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा. ये डेटा है हमारा, इससे जो हमको नॉलेज अपना समराइज करना है, वी टेक इट एंड वी विल फीड इट इन द मॉडल. देन यू हैव दिस जनरलाइजेशन. So what this generalization is, see there is this word inference, conclusion draw करना, conclusion draw करना. Your aim is whatever you have learned, you have to apply it in the future task.
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एप्पल का, अब एप्पल का मैंने कहीं 10 लाख फोटो अगर मैंने रखा तो कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा मैं उसको, राइट? कहीं ना कहीं मैं स्टोर करूंगा उसको। मेक सेंस? कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होगा ना। जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ठीक है। अब वो डेटा जब मशीन लर्निंग मॉडल फीड करेगा तो वो पहले समझेगा कि अच्छा, इफ इट इज एन एप्पल, इफ फर्स्ट थिंग इट हैज टू बी इन रेड कलर और थोड़ा सा पैची भी हुआ तो ठीक है, मोर और लेस रेडिश टाइप का होना चाहिए। एक पेक्यूलर शेप होता है एप्पल का, वैसा होना चाहिए। ऊपर में अगर एक उसमें डंटी होता है तो इट शुड बी देयर। ठीक है। सो दीज आर दी लर्निंग जो ये एब्स्ट्रैक्शन में वो सीख रहा है। ठीक है। हाउ व्हाट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स जो उसको एक एप्पल बनाता है। नाउ जनरलाइजेशन कम, अब हमने समझ लिया कि एप्पल क्या होता है। अब मैं कोई एक पिक्चर दूं, कश्मीरी एप्पल के अलावा, इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमने एप्पल क्या समझा था, ओके इट हैज टू बी रेड कलर, ऊपर एक डंटी होना चाहिए, उस पर्टिकुलर शेप का होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसने जो भी सीखा है उसको अब जो हम टास्क देंगे आगे, जो भी उसको वो यूज करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज जनरलाइजेशन। ठीक है। एंड देन कम्स इवैल्यूएशन, कि तुम सिंपली बताते हो कि ठीक है एप्पल है, कितना अच्छे से तुम उसको पहचान पाए, होता है कितना जल्दी पहचान पाए। दोनों एस्पेक्ट है कि कितना अच्छे एक्यूरेटली तुमने किया और कितना जल्दी किया। ठीक है, दोनों, ये दोनों एस्पेक्ट होता है, राइट? यू वुड अग्री कि इफ अगर तुमने गूगल लेंस यूज किया है, राइट, तो अगर हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया है, अगर वो फैन है तो फैन को आइडेंटिफाई कर पाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कितना जल्दी वो उसको कर पाया। तो ऐसा तो नहीं चाहते मैं एक बार गूगल लेंस ऑन किया ऐसा रख दूं, अब आधे घंटे के लिए मैं बैठा रहूं, ठीक है तुम देखो क्या होता है, ये ऐसा भी हम नहीं चाहते। मोर और लेस वी यूज दिस रूल ऑफ थंब कि एनीथिंग विच गोज बाई 6 सेकेंड, अगर 6 सेकंड से ज्यादा कोई एक्सीड कर जाता है तो यूजर सिंपली उसको वहां से हट जाता है। लाइक वेबसाइट भी अगर 6 सेकंड से ज्यादा लोड हो रहा है तो यूजर हट जाएगा वहां से। कुछ आउटपुट तुमको 6 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो हम सीधे वहां से हट जाते हैं, होता है। लाइक हमको टैब बंद कर देते हैं, राइट? तो मोर लेस वी डोंट वांट कि हमारा चीज इनएक्यूरेट हो और बहुत लेट हो आउटपुट निकालने में, वी डोंट वांट दैट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट, these are the different components of learning process. So this is how a machine learns. I guess इतना क्लियर है सबको? शुड बी प्रोसीड, या कोई क्वेरी है इस स्लाइड में? अगर कोई कोई क्वेरी हो, सिंपली आस्क मी स्लाइड बाय स्लाइड। आई विल प्रोवाइड द पीपीटी तो तुमको एक बेटर वो पूरा रीडिंग तुम दे सको। बट आई गेस ऊपर ऊपर से एक आइडिया मिलना चाहिए कि क्या चीजें क्या हो रही हैं। सो आई गेस नो क्वेरीज, वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, ओके, लेट मी डू दिस। ओके, सो अब नाउ वी हैव सीन कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। नाउ हाउ डू वी डिजाइन अ लर्निंग सिस्टम? हमने देखा कि लर्निंग होता क्या है। अब हम देखते हैं कि उस लर्निंग, whenever एक system में we'll feed it, how do we actually make that system, design that system? So for that you need three different components. There are three different elements which are task, your performance measure and training experience. What do I mean by task? कि तुम जो एक्चुअली उस मॉडल से काम कराना चाहते हो, दैट इज योर टास्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मॉडल, एक हम जैसे देखते हैं, एक बहुत फेमस गेम था माइक्रोसॉफ्ट में, वो चेस वाला, देखा है, खेला है तुम लोग ने? एक चेस का था गेम, जैसे जो लैपटॉप में या पीसी में प्री इंस्टॉल आता था, चेस का एक था। अगर नहीं भी था तो चेस का गेम तुमने कोई ना कोई मोबाइल पे खेला होगा ना, जिसमें वो ऑटोमेटिकली अदर साइड परफॉर्म करता है टास्क। ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय टास्क? अगर मैं इन अ गेम ऑफ चेस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सो योर टास्क इज टू प्ले द चेस। The task is simply whatever actions you have to perform, whatever is your goal, that is your task. Next comes performance measure. What do I mean by performance measure is, it is just some different features जिस पे हम define करते हैं कि कितना अच्छा हमारा मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एक मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारी मम्मी बोली कि चलो झाड़ू लगा दो इस रूम में, ठीक है, दिस इज द थिंग। सो योर टास्क इज दैट झाड़ू लगाना। ठीक है, योर टास्क इज टू ब्रूम द हाउस और द रूम। योर टास्क इज झाड़ू लगाना।
अब अगर मम्मी आएंगी तो कैसे समझेंगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? वो देखेंगे कितना ज्यादा धूल है या नहीं रूम में। लेट्स से थोड़ा धूल मिट्टी वाला घर है, देखेंगे कितना कम धूल है। राइट? राइट, यस या नो? शशांक, मोहम्मद, आर्या, आदि, श्रेया, हर्षिता। अगर मैं एग्जामिनेशन का बात करूं, लेट्स से तुमको एग्जामिनेशन में अपीयर करा, तो योर टास्क इज अपीयर इन द एग्जामिनेशन। हाउ डू वी असेस कि तुमने कितना अच्छा काम किया है? ठीक है, तुम्हारा कुछ परसेंटेज हुआ, कुछ मार्क्स हुआ, कितना अच्छा वो मार्क्स आया, उससे हम देखेंगे कि तुमने कितना अच्छा टास्क परफॉर्म किया है। राइट? हम उसी पे जज करेंगे तुमको, तुमने कितना अच्छा से एग्जाम दिया है। देन कम्स योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। हम लोग जैसे बोर्ड्स एग्जाम में हम लोग प्री बोर्ड्स देते थे, सैंपल पेपर सॉल्व करते थे, दीज आर ऑल योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे तुमको ट्रेन किया जाता है उस काम के लिए। ठीक है? इफ आई एम टेकिंग विद द बोर्ड्स का एग्जामिनेशन का एग्जांपल, योर टास्क इज टू अपीयर इन द बोर्ड्स एग्जाम, योर परफॉर्मेंस मेजर इट वॉट एवर परसेंटेज यू गेट, कितना अच्छा तुम परसेंटेज लेके आए। एंड योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इज योर सेट ऑफ प्री बोर्ड, सेट ऑफ सैंपल पेपर्स विच यू सॉल्व। ठीक है? सो लेट्स सी कि let me actually illustrate this figure thoda sa. Let's head over to Excalidraw and let me make you understand what this figure is. Just tell me if it is visible or not. क्या ये visible है? If it is visible, give me a thumbs up. Okay, so this is not visible. Just a second, guys. If it is visible, give me a thumbs up. Perfect, perfect, perfect. If possible, let me actually ठीक है, like to keep it. ठीक है, visible है ये चीज? It is working. ठीक है, so let's start. So see, there is this diagram जो मैंने पीपीटी में दिया है. I like to illustrate it here only क्योंकि थोड़ा सा मन करता है लिखने का. See, so in order to learn something, we should be able to understand. पहले एक चीज देखो, there is, you would have some input, बहुत ज्यादा. अब you would be having some inputs, right? कुछ inputs होंगे हमारे पास. ठीक है, हम चाहते हैं इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ हमें आउटपुट मिले. हमारा एम ये है. लेट्स से अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकली बताऊं, अगर तुमने सेट्स रिलेशन पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ा है, तो देयर इज, ठीक है, यू वुड हैव सम इनपुट्स, राइट? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होंगे, अलग अलग इनपुट्स है. हम चाहते हैं कि दीज आर द डिफरेंट आउटपुट्स. हम चाहते हैं कि अगर अगर मैं ये इनपुट दूं तो मेरे को ये आउटपुट आए, ये इनपुट दूं तो ये आउटपुट दे, ये इनपुट दे तो ये आउटपुट, मतलब कुछ इस तरह से. राइट? ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए. यस. So if I want to do it mathematically, so if you have थोड़ा सा भी exposure in uh, this this thing called functions, is it clear? हाँ ये clear है. चलो, if you have something, let's say अगर functions में है, तो what a function is, a function is something, you have this domain set, right? You have this codomain set, and a function maps between these two, right? This is what a function is essentially. यही होता है a function. हम functions में कुछ input देते हैं, वो कुछ output produce करता है, right? So can we say कि in order for a machine learning algorithm, for a learning process, there has to be a test function, right? There has to be a test function.
होना चाहिए। ओके ओके, वेट वेट, देयर हैज टू बी अ टारगेट फंक्शन, देयर हैज टू बी अ टारगेट फंक्शन। इसका एम क्या है? टू मैप इनपुट टू आउटपुट। अगर if I write it like this, let's have a function which maps from set A to set B, where set A is your set of inputs and set B is your set of outputs. इतना क्लियर है? इस पे तो कुछ ऐसा वो नहीं है हाय तौबा वाला बात। दिस इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यू हैव अ टेस्ट फंक्शन, ठीक है, जिसमें इट मैप्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए इज योर सेट ऑफ इनपुट एंड सेट बी इज योर सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब let's say, in like typically when we are talking about machine learning things, we always have a training pair. We have some data pairs. Data pairs. What do I mean by this? Whatever the input and output we have it in the form of something like x comma y. Let's say x is your input and y is your output. So this is the pairs on which your target function works. So what I mean by this is, let's say you have this target function a maps to b, and if you say I put some x, I would be able to get this output y. So by combining these two as pairs, we have something like, for this input x, you would be getting some values y. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कि मैंने क्या बोला कि there is this target function a maps to b, a the set of input, b the set of output. So if I put some x as an input in this function, I would be able to get this y as output. Like for example, if I explain that, let us have this x as this let's say this is an image of a triangle, ठीक है। बहुत अच्छा से तो नहीं बना, बट ठीक है, समझने के लिए आई गेस दिस इज इनफ। मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैंने कुछ एक शेप ऐसा बनाया है, तो माई वाई शुड बी, इट इज अ ट्राइंगल, राइट? ऐसे ही होना चाहिए, कुछ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ येस और नो। सो अभी तो सिर्फ एक डेटा है। लेट्स से फॉर अ n डेटा आई कैन हैव समथिंग एज x1 comma y1, x2 comma y2 till xn comma yn। ऐसे होना चाहिए मेरे पास कुछ कि वी हैव दिस होल सेट, हर एक इनपुट आउटपुट का पेयर वी शुड बी हैविंग, ये हमारा होना चाहिए। क्लियर? ये होना चाहिए। मेक सेंस थोड़ा थोड़ा? हर्षिता, मोहम्मद, शशांक, आदि, आर्य। लाइक एक डेटा पे हम थोड़ी वर्क करेंगे, हम ऑब्वियसली मल्टीपल डेटा के लिए करेंगे, तो हर एक डेटा के लिए करस्पॉन्डिंग एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए, राइट? ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। दीज आर ऑल माई ट्रेनिंग डेटा। दीज आर ऑल माई ट्रेनिंग डेटा। इन आउटपुट और इनपुट पेयर से हम डेटा ट्रेन करेंगे। तो इफ आई लेट्स से, मैं एक सिंपल एक केस देता हूँ कि लेट्स से वी हैव अ डेटा, हमने हम कुछ डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया। तो वी डू व्हाट, वी स्प्लिट दिस डेटा इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। अदर इज समथिंग विच इज नोन एज टेस्ट डेटा और हाइपोथेसिस, काइंड ऑफ। हम क्या करते हैं, देखो हम करते क्या है, हम ट्रेनिंग डेटा उठाएं, मॉडल को टेस्ट किए। टेस्ट डेटा इज यूज फॉर रिजल्ट मैचिंग, यस, एक्यूरेसी के लिए, बिकॉज
हम ऐसे तुम अगर मैं तुमको बोलूँ उत्कर्ष पहले एक मशीन लर्निंग मॉडल बना के दो जिसमें आई वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट एवर ऑब्जेक्ट आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा, तो ठीक है तुम कुछ 10-20 लाख इमेजेस का कलेक्शन लिए डेटा, 5 लाख का तुम डेटा सेट बनाए जो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, 5 लाख का तुम रखे जिस पर हम डेटा को टेस्ट करेंगे क्या आउटपुट आ रहा है, कितना एक्यूरेट है हमारा सिस्टम। ठीक है, दैट इज व्हाट टेस्ट डेटा इज। ट्रेनिंग डेटा इज सिंपली जिस पर हम ट्रेन करते हैं, टेस्ट डेटा जिस पर हम उसको एक्चुअली टेस्ट करते हैं कितना अच्छा आउटपुट वो निकाल के दे रहा है। राइट, राइट, मेक सेंस, मेक सेंस। So if I make this diagram, थोड़ा सा just see, here we have this target function, ठीक है, let's say f maps from a to b, this is your target function। अब ये टारगेट फंक्शन किस पे वर्क करेगा, कुछ डेटा पे वर्क करेगा, कुछ ट्रेनिंग डेटा पे वर्क करेगा। We having some training examples, we would be having some training examples। अब ये डेटा हम कहाँ फीड करेंगे, अब हम इसको कुछ ट्रेनिंग एल्गोरिदम पे फीड करेंगे, ये हम अपने से बनाएंगे। ठीक है, हम एक एल्गोरिदम लेट्स से ऐसा कुछ बनाया जो हम चाहते हैं कि अगर हम ये इनपुट दें कुछ ऐसे लाइक समथिंग लाइक दिस x1 y1 समथिंग लाइक xn yn, अगर ये पूरा एक सेट है तो हम इस पे ट्रेन करेंगे मशीन अपने मॉडल को, हमारा कुछ एल्गोरिदम होना चाहिए। राइट, मेक सेंस, मेक सेंस, गिव मी अ थम्स अप अगर इतना क्लियर है। अब हम इसी ट्रेनिंग एल्गोरिदम पे एक और चीज ऐड करेंगे जो हम बोलते हैं टेस्ट डेटा, और सिंपली लेट मी राइट इट हाइपोथेसिस। you have this hypothesis set। ठीक है, हमने पहले मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया, अब उसी मॉडल में हम ये चीज फीड करेंगे अपना टेस्ट जो भी डेटा है हमारा। अब इससे करस्पॉन्डिंग मेरे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। राइट, इससे करस्पॉन्डिंग मेरे कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। सो दैट आउटपुट इज समथिंग विच इज नोन एज योर फाइनल हाइपोथेसिस। दिस इज नोन एज योर फाइनल hypothesis। Make sense इतना part? Let me see what is happening। you have this you have this you have this target function जिस पे हम चाहते हैं कि ये अगर हम इनपुट दें, और let me write it ऐसे थोड़ा, let us make it a और b, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तुम लोग के लिए। let me write it at x and y, x and y। so अगर x हम इनपुट दें तो मेरे को y वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन होगा, हम उसको इस डेटा पे टेस्ट करेंगे। हमने इस मॉडल के थ्रू उसको लर्न कराया, और जब ये मॉडल लर्न कर लेगा तो हम उसमें फिर कुछ ये इनपुट भेजेंगे जो हमारा हाइपोथेसिस सेट है। हाइपोथेसिस सेट इज सिंपली लाइक जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, और जो फाइनल आउटपुट होगा विच इज नोन एज फाइनल हाइपोथेसिस। तो दिस वाज व्हाट दिस डायग्राम वाज ऑल अबाउट। This was what this diagram was about. You have some unknown target function, you train your example, you feed that hypothesis in some learning algorithm, and you get some final hypothesis. Remember, let me just do this thing. We have not used equal to symbol, right? We have not used this equal to symbol because we assume कि there are some errors, जिसके कारण हमारा output जो होगा it should be able to get in somewhere between the actual value। ठीक है, 100% कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक्यूरेट नहीं होता है। वी वांट कि ठीक है 90%, 95%, 98% सही हो जाए, दैट इज इनफ फॉर अस इनिशियली। So this was all about machine. Now let's see what are the different steps, or we can say life cycles। So whatever you are seeing, these are different steps। So very first thing is, अब तुमको कुछ मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है
द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज योर बिजनेस नीड, किस लिए तुमको बनाना है, क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, कुछ गोल होगा ना तभी ना तुम उसको कुछ बनाओगे। मेक सेंस? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि व्हाट बिजनेस नीड डू यू वांट टू सॉल्व। देन जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उसके लिए यू कलेक्ट सम डेटा, यू कलेक्ट सम डेटा। जो भी तुम एप्पल का जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो मैं कुछ एप्पल के इमेजेस लूंगा। अब देर इज डिफरेंट, अब इसमें भी कुछ भी कंपोनेंट होता है जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग जिसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी डिफरेंट स्टेप्स हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आता है। देन वॉट एवर द डेटा वी हैव कलेक्टेड वी वुड बी एबल टू मेक सम मॉडल। ठीक है, मॉडल में बेसिकली व्हाट वी हैव सेड, वी वांट सम काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी जिससे हम कुछ इनपुट दे और कुछ आउटपुट निकले। दिस वाज व्हाट मॉडल वाज। सो यू डेवलप सम काइंड ऑफ मॉडल जो इस डेटा पे वर्क करेगा एंड वी ट्रेन दैट डेटा, ट्रेन दैट मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा। जब ये हो जाएगा देन जैसे मैंने बताया वी फर्स्ट ट्रेन इट एंड वी देन टेस्ट इट। सो वी हैव टेस्टेड आवर मॉडल। ठीक है, वी हैव टेस्टेड इट, देन वी डिप्लॉय इट समवेयर। अब तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल तुम्हारे सिस्टम पे थोड़ी वर्क करेगा, कोई मोबाइल ऐप में यूज होगा, कोई वेब ऐप में यूज होगा, राइट? तुम्हारे सिस्टम में थोड़ी वो यूज होगा, तुमने तो किसी के लिए बनाया ना, तो वो जहां वो चाहे उसको वहां वर्क कराएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव सम बिजनेस एप्लीकेशन, वहां पे ये डिप्लॉय होगा। वी सिंपली देन, अब जैसे मैंने बोला कि वी कंटिन्यूअसली मेक दैट सिस्टम लर्न, हम कंटिन्यूअसली इसका आउटपुट को देखते हैं, अगर कुछ डिविएशन होता है वी सिंपली ऑप्टिमाइज इट। सो दिस इज द इंटायर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया होगा। कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जिसको ये पोर्शन नहीं समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। जस्ट लेट मी हैव अ क्विक, आगे इसके आगे है क्या? ठीक है, ओके। सो अच्छा, अब लेट मी हेड बैक टू एक्सकैलिटर। अब मैं थोड़ा सा पीपीटी नहीं यूज करूंगा, आई विल सिंपली यूज दिस थिंग। अच्छा, टेल मी विच इज मोर कन्वीनियंट, यूजिंग पीपीटी और बाय गोइंग आउट एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन लाइक हाथ से लिख के? विच इज मोर मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू, मेरे लिए नहीं। Just type it in the chat whether you want PPT or you want it handwritten. वहाँ राइटिंग इज बेटर एंड थ्योरेटिकली, हाँ ठीक। सी अल्टीमेटली जो भी मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट यूज करूंगा वो तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगा तुमको। हैंड रिटन, हैंड रिटन कहीं ना कहीं इज मच, बिकॉज अभी मेरे लाइक 4:30 में मेरा ऑफिस ऑफ होता है, देन मेरे को पीपीटी बनाना होता है, समथिंग लाइक दैट। एक दिन पहले करने में थोड़ा सा लाइक कल तो काम था तो नहीं हो पाया। एनीवेज, लेट अस सी कि हाउ डज योर मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स। हैंड रिटन ही से, हाँ काइंड ऑफ। लेट्स सी हाउ डज योर, ओके, व्हाई इज दिस सो स्मॉल? आई गेस ये क्लियर नहीं है। अच्छा एक मिनट, अब है थोड़ा क्लियर? लेट्स सी, किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए व्हाट शुड बी द इनपुट? सी let us have this mathematical, in order for a machine learning model to work we need some kind of input. What this input should be? Can anyone tell me input क्या होना चाहिए? The input should be something like data. Yes, we need some data. And what should be the output?
द आउटपुट भी भाई जो डेटा के करस्पॉन्डिंग वी वांट सम लेबल्स, इट शुड बी माय आउटपुट। लाइक एप्पल है तो एप्पल आना चाहिए, बैट है तो बैट आना चाहिए, वी वुड बी हैविंग सम, सिंपली लेट अस राइट सम, let me keep it like, छोड़ इसको हटा। So you got result, we want some kind of result, yes, we can write the output should be your result. Now let's see what are the different process which are involved in this. So what happens is you have some data, you have some input data. Okay, you have some input data. You do what? You train your ML model on this. Machine learning model जो होता है, you train this thing on input data. Clear है? Clear है? Is it clear? So what it is doing is it is learning. It is learning from input data. Is it clear? हो क्या रहा है? We have some input data and this input data is fed to some machine learning model. We want to train that thing. अब वो machine learning model उस data का करेगा क्या? It will learn obviously from it. ठीक है? ठीक है? Now let's see what happens. Based on this thing, we build some logical models in inference draw करने के लिए. Build some logical models. ये ऐसे क्यों हो जाता है यार? We build some logical models. जिसका काम होता है कि you have to identify patterns so that your model is actually ready for some test data. ठीक है? What I said, you would be able to get out the features so that whenever you feed some new data, whenever you are feeding some new data, उस पे ये model कुछ logical interference draw कर पाए and it should be able to produce you some outputs. I guess this was all about how this model works. थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं. फर्स्ट थिंग, you need some input data, इस पर मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करेगा. यू ट्रेन योर मॉडल ऑन दिस थिंग, जिससे क्या हो रहा है, तुम्हारा मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कर रहा है. इस मशीन मॉडल को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं टू बिल्ड सम लॉजिकल मॉडल, जिसपे हम इंटरफेरेंस ड्रॉ करवाएंगे, इन्फेरेंस ड्रॉ करवाएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करवाएंगे, सो दैट whenever new data is fed, जब वो कुछ नया डेटा फीड करेंगे, it should be able to give you some outputs. Is it clear? Is it clear? So we can say, like, whatever data we have provided, we have built some models which predicts whenever it gets some new data. ठीक है? Is it clear? Is it clear? So जैसे मैंने बताया like last time भी कि whenever we want to increase some accuracy, generally we do what? We increase the amount of data. जितना ज्यादा वो डेटा फिर वो ट्रेन होगा, उतना ज्यादा वो फीचर समझ पाएगा, राइट? उतना ज्यादा वो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन कर पाएगा, और जितना अच्छा वो लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन कर पाएगा, उतना अच्छा वो नए डेटा के साथ वर्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स से कि आई हैव दिस मोबाइल फोन हेयर. मैं एक पिक्चर ऐसे जिसमें सारे पिक्चर्स में ऐसे ऐसे फोन रखा हूं, एकदम प्लेन के, एकदम पैरेलल. ठीक है? तो अगर मैं नॉर्मल डेटा का बात करूँ, डेटा में तो हर फोन ऐसे होगा नहीं, कुछ फोन कुछ ऐसे भी होगा, 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 ऐसे ही होगा, राइट? डेटा का बात करो, डेटा में सारे फोन ऐसे ही थोड़ी रहेंगे. डेटा क्या है? डेटा इज समथिंग यू गेट.
ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, कोई ऐसे रहेगा। और हर एक में इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नो, वॉट एवर एक्सिस यू आर पुटिंग दिस, वॉट एवर इज इट्स रोटेशन, इट इज स्टिल अ फोन। ठीक है। एप्पल का बात करूं तो एप्पल में हो सकता है कि उसका डंटी नहीं हो सकता है कि वो एप्पल हल्का रेडिश नहीं हो, वो आधा खाया हुआ हो। राइट। राइट। स्टिल इट इज एन एप्पल ओवरऑल। तो स्टिल तुम्हारा मॉडल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस इज एन एप्पल। सो व्हेन वी आर ट्रेनिंग इट विथ बहुत ज्यादा डेटा, होता यही है कि जब हम डेटा बढ़ाते हैं तो हमारा वैरायटी बढ़ जाता है फीचर का। और जितने ज्यादा फीचर्स वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा वो ये पार्ट जो है मशीन लर्निंग का, कि इट शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट विथ एक्यूरेसी, वो इम्प्रूव हम कर पाएंगे। सो लेट अस डू व्हाट, आई गेस इतना पोर्शन आई अज्यूम की क्लियर हो गया है। इज इट? So let us do what? Let us understand what are the different types of, yeah, classifications of machine learning. Just tell me कि कौन ज्यादा विजिबल, कौन कहाँ गया? ये ज्यादा क्लियर था, ये इससे पहले वाला क्लियर था? डार्क मोड पे रखूं या लाइट मोड पे रखूं? जस्ट गिव मी अ डार्क। Kindly type it. Should I keep it in dark mode or light mode? शशांक says dark. Like तुमको ये दिखना चाहिए क्या हो रहा है, लिख रहा हूं मैं। लाइट। आई गेस लाइट ही मेरे को भी ज्यादा सही लग रहा है। शशांक, अच्छा इन केस नहीं दिखता है तो जस्ट टेल मी। ओके, so let's try to understand what are the different classification of machine learning. So machine learning is broadly classified into three categories. It is classified on three categories. First is known as supervised learning, supervised machine learning. The second is known as unsupervised learning. ठीक है, unsupervised ML. And the third is known as reinforcement learning. देयर इज वन मोर थिंग, सब सुपरवाइज लर्निंग, जहां पे हम इन दोनों को मिला के यूज वर्क करेंगे, बट ठीक है। अब सब सुपरवाइज लर्निंग इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट इज नोन एज रिग्रेशन, द सेकेंड इज नोन एज क्लासिफिकेशन. Unsupervised learning is also of two types. The first is known as clustering. The second is known as your association. अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो रहा है. I guess this is how we classify machine learning. We say there is this supervised machine learning, there is unsupervised machine learning, there is this reinforcement machine learning. Supervised learning is also of two types, regression and classification. Unsupervised learning is of clustering and association type, or reinforcement learning is as simple as that. there is there is this one more thing, अगर तुम इन दोनों मतलब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को जोड़ दोगे, देर इज सब सुपरवाइज्ड ML, which do what, it takes supervised ML plus unsupervised मशीन लर्निंग, दोनों के कंसेप्ट को यूज करता है. तो इसको हम ब्रॉडली यहां नहीं डील करते हैं. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस सबसे पहले व्हाट दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग इज. सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ सिखाने का. हमारे लाइक हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं, जब भी तुम लोग पढ़े होगे,
टीचर लोग कोई कंसेप्ट बताते थे तो कुछ एग्जाम्पल्स करवाते थे, राइट? जब बुक हम लोग देखते हैं, बुक अगर मैं खोलूं, कोई एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है तो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, राइट? हम क्या करते थे, उस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करते थे। हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे ताकि हमको आइडिया मिले कि बाद में अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमको ऐसे करना है। करते थे? जस्ट गिव मी अ थम्स अप, यस या नो। हम लोग सबने किया। 10th में जाओगे, सबने आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा उठा के किसी एग्जाम्पल बनाया है, या कोई भी तुम दूसरे भी बोर्ड होगे तो जो भी मैथमेटिकल, जो भी तुम मैथमेटिक्स का बुक था तुमने ये किया है, राइट? अगर तुम्हारे कोई ट्यूशन टीचर थे तो वो तुमको एग्जाम्पल्स करवाते थे, या फैकल्टी मेंबर क्लास में कोई थे तो वो एग्जाम्पल्स करवाते थे। यस। सो यहाँ क्या हो रहा है कि तुम जो भी वर्क कर रहे हो तुम किसी के सुपरविजन में कर रहे हो, जो तुमको ये बता रहा है कि अगर इस तरह का कुछ हो तो ऐसे करना और ये आउटपुट आएगा, राइट? राइट, गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम राइट और रॉन्ग। कि उसने बोला कि ठीक है बेटा, अगर तुमको बोला जाए कि पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यू नीड दीज बेस एंड परपेंडिकुलर, you do this calculation, h square is equals to p square plus b square, if you put the values there you would get some value, अब उसका लास्ट में स्क्वायर रूट ले लेना तो you would get the hypotenuse। तो बाद में अगर तुमको ऐसा कुछ दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, तो तुम कर लोगे, राइट? हम लोग कर लेते थे। इसलिए बोले थे कि जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेगा उतना ज्यादा तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उतना ज्यादा तुमको अंडरस्टैंडिंग होगा, इसलिए कहा जाता था। बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज दिस सुपरविजन। देयर इज दिस सुपरविजन जिसमें हम बताते हैं कि अगर इस तरह का कुछ हो तो ऐसे कुछ करना है और ऐसे आउटपुट आएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप if it is clear or not. Give me a thumbs up if it is clear or not. So more or less एक हमको आइडिया मिला कि in supervised learning we have this concept of supervision, right? We have this concept of supervision. ठीक है? Second thing is it works on label data. It works on label data. What do I mean by label data is, जैसे मैंने एग्जांपल बताया वहां पे, अगर तुम्हारे फैकल्टी मेंबर लेट्स से पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हैं, ठीक है, तो वो बताएंगे कि अच्छा अगर ये इनपुट है, अगर तुमने ये वैल्यूज परपेंडिकुलर बेस में डाली तो ये आउटपुट कुछ फंक्शन के थ्रू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के थ्रू आ जाएगा। तो वी हैव सम इनपुट, राइट? वी हैव सम इनपुट, इससे करस्पॉन्डिंग कुछ हमको आउटपुट मिलेगा। यही होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर, अच्छा एक और, लेट मी टेक दिस वेरी फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं ऐसे कुछ बोलूं तो देर इज ऑलवेज दिस इनपुट आउटपुट पेयर, there is always this input output pair in supervised learning. थोड़ा सा और डीप में जाए, what do I mean by this? Let's say, let me take this example. Let us have this example in which I have some age of people, I have some weight of people. ठीक है? I have some age of people, I have some weight of people. ठीक है? Let's say my age is some A1, A2, A3, A4, and I have some weight W1, W2, W3, W4। हो सकता है? हो सकता है। And let us say कि this is my input and these are my output। अब तो सिर्फ A component का बात कर। So if I say, if I get this A1 weight, my output should be W1. If I get my weight as age as A2, my output is W2 and so on. AN, if I take it from AN, my weight should be somewhere around W1। तो मैंने बोला कि if this is my in, if this is my input, this is my label। ठीक है? What is a label?
और एक और ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। बीएमआई के बारे में सबने सुना है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। और चलो सिंपल ऐसे रखते हैं। लेट्स से वी हैव सम let's say we have some marks here. Yes, some marks. Let's have some age. और हाँ ठीक है, ऐसे रखते हैं। बहुत बेसिक है। और देखो थोड़ा सा इसको जो हम एक्चुअल जिससे वर्क करें। लेट अस हैव दिस थोड़ा सा सिंपल थिंग। let us say let us say something like house price, a very common example. We have this house price, we have area, हाउस का कुछ एरिया होगा, and we can label it as cheap or expensive. तो लेट्स से मेरा एरिया कुछ A1 आया, हाउस प्राइस कुछ P1 आया, so I can say it is cheap. If my area is A2, my house price is some P2, I can say it is expensive. कुछ भी values हम यहाँ रख सकते हैं. It is just for explanation. So these are my inputs. This is my output. So we are making some kind of label कि अच्छा if I provide A1 and P1, I would be able to get this pair, cheap or it is expensive. So whenever dealing with machine supervised machine learning, हम बताएंगे मशीन लर्निंग मॉडल को कि ठीक है, अगर ए और P1 मिले, A1 और P1 मिले, तो यू हैव दिस आउटपुट एज चीप। अगर A2 और P2 मिले तो एक्सपेंसिव हो। ऐसी कुछ नंबर के लिए तुम इटरेशन के लिए करोगे तो जो भी लेबल होगा वो आना चाहिए। फिर अब हम कुछ बोलेंगे कि अच्छा अब कैन वी हैव समथिंग एज लेट्स से ए ऑफ कुछ हम आगे बहुत आगे का वैल्यू लेते हैं 1000 और P ऑफ 1000। इस वैल्यू के लिए कैन वी प्रेडिक्ट? आई कैन प्रेडिक्ट बिकॉज हमने इसको लर्न करवाया है, राइट? हमने उसको लर्न करवाया तो इट शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट कि हाँ ठीक है हो रहा है। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट डायग्राम, इफ लेट मी एक्सप्लेन इट यूजिंग अ डायग्राम, तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट। Let us say we have some training data. शेप्स पे वर्क करते हैं, तो we have some data of image, let's say, and let us say we have some labels as output. Okay, so if this is the image, I would be say this is a triangle. If this is the image, I would be able to say this is some circle. अभी सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा बस मेरे को टाइम दो। If I get something like this, so I would label it square, right? So see हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है? It is very easy to understand. Let us say we have this data here. Just in this you have some figures, triangle, इस तरह से कुछ डेटा तुम्हारे पास रखा हुआ है। So what this set is? This set is your label data. This set is your labeled data. ठीक है? Make sense? ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमने ये वैल्यूज रखी हुई है। अब ऑब्वियसली हमारे पास कुछ लेबल्स चाहिए हमें। लेबल मैंने तुमसे बोला, if I get this shape, this is a triangle. If I get this shape, this is square. If I get this thing, I will get a circle, right? ये मैंने बोला, ये मैंने बोला, just tell me. अब what I'll do, I'll simply do what? I'll simply put this whole thing in a model. I'll put this whole thing in a model. My machine learning ML model. My ML model. I'll put this thing. ये डेटा मैं फीड करूंगा इसमें। ये ML मॉडल में हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे।
कि अगर ये इनपुट आए तो इससे करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है, ये आए तो ये है, ये आए तो ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हम डेटा प्रोवाइड करते हैं इसको हम टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट डेटा में क्या होता है, अगर अच्छा in test data you do not provide some label, you simply provide the data. मैंने लेबल नहीं दिया इसको, राइट। अब इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि ठीक है, लेट्स से if this is your input figure, it is a triangle. If this is your input figure, it is a circle. If this is your input figure, this is a square, right? So this is how supervised learning works. You have a data, some labels, you train this thing, you have some test data, you feed it in the system, and it would be able to give you some output. थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या हो रहा है behind the scene? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Give me a thumbs up. अगर नहीं क्लियर है ask me, तब मैं मोहम्मद सेडियस, हर्षिता, श्रेया, यश, आदि, शशांक, आर्या, if it is clear कि हो क्या रहा है। शशांक, I guess clear हुआ what this label is? शशांक, is it clear? Label क्या होता है? Perfect. So this was about your this thing. एक चीज और देखते हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग देयर इज टू फर्दर सब डिविजन। हाँ, लाइक लेबल पूरे मॉडल में यूज होता है, लाइक इनपुट के लिए भी, डेटा के लिए भी, आउटपुट के लिए भी। तो अच्छा अभी मैंने मेजरली लेबल्स। एप्पल का जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, हाँ मैंने अपने सिस्टम को बताया कि ठीक है, इफ आई गेट समथिंग लाइक दिस इज अ फोन, राइट। सो हाँ इस पर्टिकुलर डेटा के करस्पॉन्डिंग लेवल क्या है, मेरा फोन, राइट। हाँ तो हम लेबल कहाँ यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग फेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जब मैं टेस्ट करूंगा, जब मेरा एक्चुअल सिस्टम वर्क करेगा, मैं शशांक का फोन उठा के लाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, तो इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि दिस इज अ फोन। हाँ मैंने तो शशांक के फोन में सिस्टम को नहीं बताया कि दिस इज अ फोन। हाँ सिस्टम ने क्या किया, जो उसने लर्निंग किया कि ओके इफ आई गेट समथिंग लाइक दिस, इसके करस्पॉन्डिंग ये लेबल है, तो आई वुड पुट द आउटपुट एज द लेबल जो मेरा फोन है, राइट। यही हो रहा है। हम्म दिस इज व्हाट अ लेबल इज। लेबल यूज होता है ट्रेनिंग ठीक। फेज में। ओके, so let's head to our next component, which is known as the first subdivision, which is known as regression problem. Regression, this is the very first sub classification of your supervised learning, जिसमें देखो होता ये है कि what we want is we input something and we get output something which is continuous. What I said, कि I input something, I get the output which is continuous. This, what this regression means is, if there is some relationship between input and output. For example, जैसे मैंने यहां पे दिया, अगर ये एज है तो ये वेट आया, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ठीक है, there is this A1, if I put it into some hypothesis, ठीक है, if I put it in some hypothesis, my output is W1, right। हर बार जब मैं A1 डालू, एज मेरे लिए वेट W1 आना चाहिए, ठीक है। So can we say A1 is somehow related to W1? There is some kind of relation जो हमको पता नहीं है, ठीक है, we don't know the actual relationship, but ठीक है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है।
मेक सेंस थोड़ा थोड़ा? इफ आई डू इट फॉर A2, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है कि जब भी मैं A2 पुट करूं इनपुट में, हमको W2 इज द आउटपुट, हमको हमेशा W2 ही आना चाहिए। तो अंडरलाइन कोई ना कोई एक फॉर्मुलेशन है, कोई ना कोई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है दोनों के बीच। अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लूं, समथिंग लाइक दिस, एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं। इफ दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय आउटपुट। इफ आई राइट 1, द आउटपुट इज 2, 2, 4, 6, 8, 8, 6। सो 1 और 2 आर रिलेटेड, कोई एक रिलेशनशिप फंक्शन होगा। 2 और 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, कोई ना कोई एक फंक्शन है इसके बीच जो वर्क कर रहा है। दैट फंक्शन इज सिंपली दिस थिंग। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन रहा है इसके कारण, इस फंक्शन के कारण, कि जब भी मैं इस फंक्शन में 1 इनपुट पुट करूं, व्हेनेवर आई पुट 1 देयर, द आउटपुट शुड ऑलवेज बी 2। या जब भी मैं 2 यहां डालूं, मेरे को आंसर 4 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। जस्ट गिव मी अ यस या नो। So whenever there is some kind of relationship between the input and output, we can say we would be doing it using regression. Regression is some, और ये हमेशा, चलो यहाँ पे आने दो। If there is some kind of relationship between input and output, we use it in regression. Oh, just a second. It works on continuous variable, जब वैल्यूज तुम्हारी कंटिन्यूअस हो, तो वैल्यूज तुम्हारी कंटिन्यूअस हो। कोई मेरे से पूछ सकता है व्हाट दिस कंटिन्यूअस वेरिएबल इज, बट आई वुड अप्रिशिएट कि एक बार तुम ये खुद से ट्राई करो, फिगर आउट करना कि व्हाट कंटिन्यूअस एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर। टिल देन लेट मी थोड़ा सा आगे बढ़ जाने दो। होता ये है कि वी वांट कि कुछ इनपुट आए और करस्पॉन्डिंग वही आउटपुट आए, इफ देयर इज सम अंडरलाइंग रिलेशनशिप। So we can say it works on continuous variable for predicting it. Okay, let me erase this thing. For prediction, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कैटेगोरिकल वेरिएबल, लाइक जैसे मैंने वहां बताया, एक एप्पल है, एक बनाना है, या फिर यहाँ एक फोन है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन विच थिंग्स आर वर्किंग। एक इसका अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सी लाइक दिस, कि लेट अस से अभी एज वेट वाला एग्जांपल लेता हूँ। देयर इज दिस एज, लेट्स से 26, 25, 30। ठीक है, लेट अस हैव दिस वेट। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, एक मिनट। Let us say this is somewhere around 75, this is somewhere around 78, let us take it at 82। ठीक है, so can you tell me कि इसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? Okay, I can say my input is age, my output is this weight, the output is weight, this is my output. So these are continuous values, right? Continue, ऐसा नहीं है कि, if you go by the very exact definition of what a continuous variable is, ठीक है, the values in the output should always be a continuous variable। एक मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, तुमको इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। बट आई वुड अप्रिशिएट कि यू वुड try to figure out what this continuous and this categorical variable is। एक 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 कॉमन प्रॉपर्टी है कंटिन्यूस वेरिएबल का, इसका वैल्यू जो होता है एक डेफिनेट रेंज में होता है। लाइक यू कैन ऑलवेज हैव दिस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जिसके बीच वो वैल्यू, उसके बीच वो लाई करेगी। लेकिन ये तुम्हारा इसके साथ नहीं होता है।
categorical variable. Let's say मेरे पास एक रूलर है, तो द वैल्यूज वुड बी इन बिटवीन 30 to 15 सेंटीमीटर, राइट? इसके बीच कोई भी वो वैल्यू हो सकता है, राइट? इसके बीच कोई भी वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब किसी दो वैल्यू, जैसे हम 1 और 2 के बीच इन्फानाइट वैल्यूज हो सकती हैं। अगर न्यूमेरिकल स्केल है तो हमने पता है किसी भी दो नंबर लाइन में दो नंबर के बीच में इन्फानाइट वैल्यूज हो सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। बट अगर हम ब्रॉडर स्केल में बात करें तो ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर का मार्किंग लेते हैं तो एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा। दिस इज व्हाट कंटिन्यूअस वेरिएबल इज। कैटेगोरिकल वेरिएबल इज समथिंग विच इज डिफरेंट। जैसे हम लोग हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, करेंसी का वैल्यू मेजर करते हैं, तो दीज आर ऑल योर कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल हम देखेंगे जब हम अनसुपरवाइज आएंगे। कहाँ गया? इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? स्टिल ओके। सो हाँ, आई गेस अब होगा। हाँ, so plot this thing if I plot this thing, yes, so let's say this is my axis. So in this axis I am putting my weights, right? In this axis I am putting my age, right? So I can say for some age, let us have some age here, let us have some weights here. So I can say कि कुछ वैल्यू होगा इसके लिए, 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 राइट? राइट? Am I correct? Am I correct? So in order to predict something, let's say let's take a very mathematical example. Let us have a line. Let us have this line. अब इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? mx प्लस बी mx प्लस सी का जो तुम्हारा मन है, यही होता है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है। सो इफ आई नो m एंड c, तो अगर मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे कुछ y वैल्यू मिल जाएगा। तो देयर इज दिस रिलेशन। और अगर इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कुछ पैराबोलिक कर्व, कुछ भी एक कर्व होगा जिससे हम इनपुट और आउटपुट को मैप कर पाएंगे। इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट देर इज ऑलवेज दिस थिंग कि देर इज अ अंडरलाइंग फंक्शन, देर इज एन अंडरलाइन फंक्शन विच इज वर्किंग ऑन x टू प्रोड्यूस सम आउटपुट y। अब वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, बट देर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग फंक्शन। ठीक है। मोरलेस आई अज्यूम कि रिग्रेशन समझ में आया थोड़ा सा, कि देर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप between input and output variable. So if this is the case, regression problem is used. The important characteristic is the output is always a continuous variable. So let us do for some other classification which is known as classification in machine learning. Okay, so why do we want to have some classification? Is that we want to build some kind of categories. We want to build some categories. For example, let's say we have a very binary classification in which, अच्छा ठीक, अभी जो मैंने थोड़ा पहले एग्जांपल दिया था, if this is the input, we have a category named as triangle. तो अब ऐसा मिलता जुलता जितना फिगर है, everything will come in this category which is known as triangle. If I have this shape, या अब इस शेप से जितना भी मिलता जुलता शेप है, this will come under the category of square. अगर एक ऐसा फिगर है तो इससे मिलता जुलता जितना भी फिगर मिला मेरे को, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्कल. सो वी आर सेइंग इज वी आर क्लासिफाइंग द इनपुट. वी आर डूइंग व्हाट? देयर इज सम इनपुट
वी आर मैपिंग इट फ्रॉम आउटपुट फॉर सम क्लासिफिकेशन कैटेगरीज, कोई हम कैटेगरी में हम पुट कर रहे हैं, हम कुछ कैटेगरी में पुट कर रहे हैं, तो वी कैन से कि दिस इज अ कैटेगरी, कैटेगोरिकल वेरिएबल, यही हो रहा है मोर और लेस। जैसे अभी देखा तुमने, अगर ये इनपुट दिया तो एक कैटेगरी ट्रायंगल बन गया, ये हमने इनपुट दिया तो एक कैटेगरी स्क्वायर बन गया, ये इनपुट दिया, अगर हमने ये इनपुट दिया सर्कल कैटेगरी में आ गया, राइट? यही हो रहा है। जस्ट टेल मी यस या नो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे अपने ईमेल ईमेल चेक करोगे तो देर इज दिस स्पैम फिल्टर, राइट? देर इज दिस स्पैम फिल्टर, या तो स्पैम के कैटेगरी में या फिर नॉट अ स्पैम के कैटेगरी में तुम्हारा ईमेल, यही होता है, यही होता है। रिग्रेशन का एग्जाम्पल दे, रिग्रेशन का एग्जाम्पल है कि लेट्स से कि a very basic example is this height and weight predictor, अगर तुम कुछ हाइट डालो तो कुछ वेट प्रिडिक्ट होके आ जाए। या फिर हम नॉर्मल अगर यूज केस देखें, अगर हम एक नॉर्मल यूज केस देखें रिग्रेशन मॉडल का, तो वेरी इंटरेस्टिंग रिग्रेशन एग्जांपल इज समथिंग एज सिंपल एज योर हाउस प्राइस प्रिडिक्टर, कि तुम लोकेलिटी डालो और उसका एरिया डालो, कितना एरिया में उसका कुछ वैल्यू पता चल जाए। लाइक हम लोग ये यूज करते हैं ऑनलाइन रेंट कैलकुलेटर प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारा एरिया ये है, इस एरिया में है, कितना एक्चुअली रेंट आएगा, समथिंग लाइक दैट करते हैं। So these are all in your classification thing. Let us go for some unsupervised learning. Unsupervised learning unsupervised learning, if you have to understand, unsupervised learning, I would like to give you a very nice analogy. कि लेट अस से कि तुमको मैं किसी एकदम वीरान जगह पे छोड़ आया, किसी ऐसी जगह पे छोड़ा जहां पे तुम कभी नहीं गए थे, राइट? अब तुम जब वहां जाओगे तो तुम ये देखोगे कि तुम आसपास क्या क्या फीचर है, क्या अगर अगर तुमको लगे कि उधर ज्वालामुखी है तो तुम उधर नहीं जाओगे, राइट? अगर ये उधर पानी है, तुमको प्यास लगे तो तुम उधर जाओगे। मैंने कुछ तुमको लेबल करके नहीं दिया कि ज्वालामुखी है तो तुमको उधर जाना है, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स बाय योर ओन, कोई तुमको बताने वाला वहां पे नहीं है। सो यू नॉट इन सम काइंड ऑफ सुपरविजन। Sorry, unsupervised learning. So there is no supervision. कोई तुमको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कि अगर तुमको ये इनपुट आया तो ये आउटपुट आना चाहिए। नो वन इज इंस्ट्रक्टिंग यू दैट। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या फीचर है और सब फीचर को एक साथ लाओ। ठीक है? दिस वाज व्हाट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज। थोड़ा सा वी कैन से कि हाँ ऐसा है, इसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली द सिस्टम हैज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट सिमिलैरिटीज, उसको क्या क्या सिमिलैरिटी मिल रहा है, क्या क्या कॉमन वो निकाल सकता है। आई गेस थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे हमने पहले बताया कि इफ दिस इज द इनपुट दिस इज द आउटपुट, हमने मशीन को बता, हमने सुपरवाइज करा है कि इफ दिस इज द इनपुट दिस शुड बी योर आउटपुट, हमने उसको सुपरविजन किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। No, we are not dealing like that. What we are saying is it is purely machine का responsibility to try to identify what is common, what is similar between different inputs. So कि let's say कि for example we have some images. मैं बताया नहीं हूँ कि ये किसका इमेज है, बट ठीक है, अगर मैं एप्पल का एक इमेज दिया तो अगर कोई दूसरा एप्पल का इमेज दूं तो दोनों एप्पल का इमेज सिमिलर है, कॉमन है, तो वो सब एक साथ आना चाहिए। कैट का इमेज है तो कैट और दूसरे कैट का इमेज साथ में आना चाहिए। मैं बताऊंगा नहीं कि दिस इज अ कैट का इमेज। द सिस्टम इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, एक कैट का भी जो फीचर होता है दूसरे भी कैट के फीचर में वही फीचर होगा,
तो वो कैट का इमेज कलर में चेंज कर सकता है, लेकिन जो कैट का फीचर उसको कैट बनाता है वो तो सेम ही है दोनों में। मेक सेंस? थोड़ा 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 मेक सेंस। अभी मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इट डज नॉट वर्क ऑन लेबल डेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सी हाउ डज इट वर्क्स। लेट अस से we have some you have some shapes again। मैं शेप्स का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। you have some shapes। now we are not providing कि ये कौन से लेवल का है। एक स्कैली ड्रॉ हो जाए। हाँ, आई ट्राई कि अगर ये शेयर हो जाए। so this thing is unlabeled now। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कि दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ स्क्वायर। अब आई एम नॉट इंस्ट्रक्टिंग इट। अब ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर। अब मैं इस सिस्टम को नहीं बता रहा हूँ। नाउ I'll do what? I'll have this next step। This step is what? This is your data। ठीक है, this is your input data। Now the next step is, the next step goes कि the system should be able to interpret it। Interpret this thing। इंटरप्रेट करने का मतलब आई गेस क्लियर ही है सबको, समझ पाए कि है क्या। पहली बात, इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई तुमने जो मेरे को दिया है ये है क्या। पहली बात ये मेरे को समझाओ। उसको जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि मैं तुमको वीराने एरिया में छोड़ा हूँ, तुम्हें सामने एक पहाड़ दिख रहा है, उसमें से लावा निकल रहा है, तो तुम इंटरप्रेट कर पाओगे ठीक है दिस इज अ वॉल्केनो, दिस इज अ वॉल्केनो। ठीक है, so the next step is when you interpret, you do what? You feed this interpretation in some algorithm, which is your unsupervised algorithm। whatever interpretations जो तुमको मिला है, you feed this thing in some kind of algorithm, and when you get that, you process it। just a second। whenever you get this algorithm, you process this thing। a processing phase comes। इस प्रोसेसिंग फेज में होता क्या, कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। if you have this category named as triangle, you have this category named as circle, you have this category named as square। so जो भी मैंने इनपुट दिया, जो भी डेटा इसको इसमें मिलेगा वो इसको सिंपली इसमें पुट कर देगा। let's have this different category। थोड़ा सा आज का सेशन लेंदी होगा। आई अज्यूम कि आई वुड अप्रिशिएट कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए आज। सब अब इस ट्रायंगल कैटेगरी में जितने ट्रायंगल्स उसको मिले सब इसमें आ जाएंगे, जितने सर्कल मिले इधर आ जाएंगे, जितने स्क्वायर मिले वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ unsupervised machine learning model works, in which the very first step is, let me revise, you have some unlabeled data which is some values तुम्हारे हिसाब से, it can be anything। first is your the machine learning model has to interpret it कि भैया तुमने दिया क्या है मेरे को as an input। then it is fed into some algorithm। बहुत सारे algorithms होता है, we'll see। then you have some processing phase जिससे तुमको ये आउटपुट निकल के आ रहा है। so you get this output in some categories। a triangle is a category, a circle is a category, a square is a category। so does it make sense थोड़ा थोड़ा what we are doing? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है? हाँ सुशांत बोलो। रंजय ये एल्गोरिथम में तो डिफाइंड होगा कि ये शेप हमारा ट्रायंगल है, ये शेप हमारा सर्किल है, तो फिर कैसे इंटरप्रेट करेगा? ये जो आउट इंटरप्रिटेशन होता है, ये जो इंटरप्रिटेशन होता है, इट वर्क्स ऑन टू थिंग्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस।
अभी जब मैं फॉर्मली जब हम उसको ग्राफ में देखेंगे ना, जब मैथमेटिकली देखेंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि जितने स्क्वायर्स वाले सारे चीज थे, सब मोरलेस सिमिलर थे, मोरलेस हाँ, सिमिलर थे, सिमिलर थे। तो उनको मैं एक कैटेगरी में दे दिया। हाँ, जितने सर्कल वाले थे, जितने सर्कल वाले थे, सब एक कैटेगरी बना रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हाँ, सिमिलर। हाँ, इफ वी हैव स्क्वायर, स्क्वायर आर ऑल्सो सिमिलर। बट हाँ, ये सब जितने चीजें हैं ये आपस में तो डिफरेंट है, ये हाँ सब है। चीजें आपस में तो डिफरेंट है, राइट। अब इसके लिए हाँ, देयर आर डिफरेंट अप्रोच। हम देखें, जब देखो, इसलिए बोला थोड़ा सा व्हेन वी विल डीलिंग विद द मैथमेटिक्स तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे अगर तुमने जो ये मेरे से पूछा ही है तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर इफ देयर इज अ कैट, if there is a dog, if there is something as ant. So if I am able to plot it in a space, so I can, let's say this is an ant, this is a dog, this is, sorry, these should be not here. ये तो input है. I should be having some. अच्छा रुको ऐसे. We have few input. एक पहला इमेज है I1, एक दूसरा इमेज है I2, एक तीसरा इमेज है I3. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो होता क्या है कि जितने भी सिमिलर इमेजेस होते हैं, जितना भी सिमिलर फीचर है, वो एक साइड, एक तरफ आ जाता है। अभी के लिए बस इतना समझो कि जितने सिमिलैरिटीज है वो एक साथ क्लब हो जाते हैं। यहाँ पे यू कैन क्लब दीज थिंग्स टुगेदर। ये साथ एक, अब यहाँ पे आ रही है स्पेस, या एक दूसरे के आसपास नजदीक है, इसीलिए हुआ। देयर इज सम डिफरेंट अप्रोच। अभी के लिए आई गेस इतना ही समझो कि इट डिफरेंशिएट्स इट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस जो हर एक फीचर पोजेस करता है, एंड देन वी क्लासिफाई इट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर दिस थिंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एक चीज और समझनी है, वी डोंट हैव, वी डोंट हैव डिपेंडेंसीज। जैसे वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। लाइक सी, इन दिस थिंग, अगर मैं इस पे बात करूं तो एज इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट था, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं ये वाला एग्जांपल दूं, कहाँ गया ये एज और ये वाला। सो व्हेनेवर वी आर फीडिंग सम काइंड ऑफ, व्हेनेवर वी आर फीडिंग सम काइंड ऑफ एज हेयर, हमको आउटपुट मिल रहा है, तो वी कैन से एज इज योर इंडिपेंडेंट, बिकॉज एज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वेट को वही वेट होना चाहिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो in supervised learning there is some kind of dependencies, but in unsupervised learning there is nothing such as dependent variable. अब आते हैं इसके डिफरेंट सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो अ वेरी फर्स्ट सब टॉपिक इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में जैसे मैं तो अभी एक एग्जांपल दिया कि ओके वी हैव सम इनपुट्स, ठीक है। लेट्स से, लेट अस से समथिंग लाइक कि वी हैव सम यूजर्स, वी हैव सम यूजर्स, और इसने कितना, okay, let us have some students, ठीक है, and their marks, ठीक है। let us have some students, let us have their marks। अब there is some student S1, let's say उसका marks आया some 50%, S2 20%, there is some S3 90%, similarly it can goes on to something like S4, again 100% marks, S5 there is 10% marks. So can we have it something like कि if let's say there are different marks here, these are different, we have few marks like something like this, ठीक है, we have some marks like this. So
वी कैन से, कैन वी से कि अच्छा, सिंस ये थोड़ा ऊपर वैल्यू में है, so these can be your best students. So you can see you have 90, 100. We can have a category in which we can say, or you can extend it to somewhere like ऐसे. You can extend it like this. Okay. You have some values here. ये सारे बच्चे बेस्ट हैं. We can say because ये ऑलरेडी थोड़ा ऊपर लाई कर रहे हैं मार्क्स में, ये थोड़ा ऊपर लाई कर रहे हैं, तो कैन वी से दीज आर योर बेस्ट स्टूडेंट, these are your average student. Oh, these are your average student and remaining let's say कुछ नीचे में these are your worst student. तो तुमने क्लस्टर बना दिया कि इतना एरिया में अगर मार्क्स लाई करेगा तो these are your best student. तुमने कैटेगरी बना दिया, क्लस्टर बना दिया कि इतना में मार्क्स लाई करेगा तो these are your best student, इतना में लाई करेगा तो these are your average student, इतना में लाई करेगा तो these are your worst student. ठीक है. अगर मैं तुमको बोलूं कल को, अगर इफ आई एम द कंपनी और मेरे को कुछ बुक्स अगर बेचनी है जो बहुत हेल्पफुल है, तो अगर मैं बेस्ट को बेचने जाऊंगा तो वो ऑब्वियसली खरीद सकता है. अगर वो टारगेट करना है, लेट्स समझो टारगेटिंग देखते हैं गूगल एड्स पे. अगर मेरे पास एक बेल्ट है, इफ आई एम सेलिंग, लेट्स से मेरे को परफ्यूम्स बहुत पसंद है. ठीक है. परफ्यूम्स के भी डिफरेंट कैटेगरी है. लाइक जब मैं बचपन में वी यूज टू हैव दिस वाइल्ड स्टोन, फॉग, इस तरह से चीज मोस्टली 300 400 के अंदर आ जाता था. राइट. आता था. जैसे ये ऐसे एकदम प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ. तो अगर इफ आई एम अ बिजनेस कंपनी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो 300 200 वाला परफ्यूम लगाएगा वो मोर और लेस स्टूडेंट कैटेगरी में आना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर थोड़ा लाइक थोड़ा लेस, मतलब इफ आई एम सेइंग कि वो थोड़ा मिडिल क्लास का होना चाहिए लड़का, लोअर मिडिल क्लास के रेंज में 200 300 वाला परफ्यूम लगाने वाला. बिकॉज लेट्स से अगर मैं बहुत सारा डेटा है कस्टमर का, ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू सेगमेंट आउट मेरा बिजनेस केस. सो आई एम सेइंग इफ मेरे पास एक डीओ है, डीओ कंपनी है, अब मेरा मार्केट प्राइस 200 रुपीज है, आई वुड लाइक टू सेल इट टू ओनली सच स्टूडेंट जो लोग स्टूडेंट हो या फिर लोअर मिडिल क्लास के हो. तो आई हैव टू इन सच केस मेरे को जो थोड़ा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग होंगे उनको टारगेट करना होगा, जो उनके क्लस्टर में आएंगे उनको टारगेट करना होगा. राइट. आगे तुम जाओ यहाँ से. कैन वी से लाइक दैट? कैन वी से? ठीक है. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इफ आई एम अ परफ्यूम कंपनी, जो आई एम सेलिंग इट अराउंड समवेयर अराउंड 1500 से 2000 3000 के रेंज में, तो माई गोल विल बी टू टारगेट दी अपर मिडिल क्लास, जो उस क्लस्टर में आते हैं सिर्फ उनको टारगेट करना है मेरे को. अब बताओ कोई लोअर मिडिल क्लास का बंदा क्यों 1500 2000 3000 का परफ्यूम खरीदेगा? हाँ, खरीद सकता है, खरीद सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बट इन जनरल सेंस वो नहीं करेगा. राइट. वो नहीं करेगा. एंड देर इज दिस. अच्छा रुको, जस्ट अ सेकंड, मैं ऐसे बता देता. आई हैव दिस टेबल, आई हैव दिस कैटेगरी ऑफ रिच, आई हैव दिस कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास, आई हैव दिस कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल क्लास. ठीक है. तो अगर मेरे पास एक परफ्यूम है जो 1500 से 2000 रुपए के बीच है, तो आई वुड ओनली टारगेटिंग दिस क्लस्टर, आई वुड बी ओनली टारगेटिंग दिस क्लस्टर. राइट. अगर मेरे पास 200 300 का बजट है तो आई वुड बी टारगेटिंग ओनली दिस क्लस्टर. अगर इफ आई एम अ वेरी नीश कंपनी, लाइक मेरे को इफ आई लाइक वेयरिंग परफ्यूम ऑफ लेट्स से क्रीड, क्रीड का परफ्यूम तुमको 1500 के ऊपर का आएगा, 15,000 के ऊपर का आएगा, 25,000 30,000. तो अगर क्रीड को टारगेट करना होगा तो इट वुड बी ओनली टारगेटिंग दिस सेक्शन, रिच का सेक्शन. राइट. राइट. So there is an application which is known as market segmentation, मार्केट को सेगमेंट करना. ऐसे ही इन आईपीएल हम क्लासिफाई करते हैं कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको किस कैटेगरी में देना चाहिए. बहुत अच्छा प्लेयर है, बीच का है, सो है समथिंग, आई उसके बेसिस पे हम उसको प्राइस अलॉट करते हैं. तो उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. सो कैन आई से कि तुम लोग को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया व्हाट दिस थिंग इज? कैन आई एक्सपेक्ट? ठीक है. ठीक है. ठीक है. So there is this another subcategory which is known as association.
there is this subcategory of unsupervised learning which is known as association. Okay. इसको if I would have to explain, you have to take it in somewhere like कि your aim is to associate between the values which is in the data to the values which you want it as an input. Let me break it down for you. So for example, let us say कि if there is a person who is willing to buy bat, if there is a person, let us say if there is this person and he wants to buy a bat, right? अगर ये बैट खरीदना चाहता है, राइट, तो कैन वी से कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसको बॉल का भी जरूरत पड़ेगा? कैन वी से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ही बाइज अ बॉल, अगर ये बैट खरीद रहा है, राइट? अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमको एक कार खरीदना है, तो कैन आई से इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट बाइंग ऑफ योर कार इज हाईली एसोसिएटेड टू बाइंग पेट्रोल फॉर दैट कार? कैन आई से कैन आई से दिस? और अगर मैं ऐसे बोलूं, if I say it like this, if I say it like this कि अगर मैं एडमिशन कराने आया हूँ किसी कॉलेज में, तो इट इज वेरी हाईली लाइकली कि मैं जो भी स्टेशनरी है, बुक्स वॉट एवर, स्कूल में जैसा हम देखते थे, हम उसी स्कूल से खरीदे। यही होता था अधिकतर, अगर स्कूल में कोई स्टेशनरी शॉप है या समथिंग लाइक दैट, अब हम लोग यही करते। सो जैसे मैंने 12th में अपना चर्न प्रिडिक्टर बनाया था। चर्न प्रिडिक्टर is a very ideal case of this association. ठीक है? एसोसिएशन में इज व्हाट कि तुम क्या कह रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू एसोसिएट बिटवीन डिफरेंट फीचर। यू आर ट्राइंग, जैसे कोई अगर अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में तुम ब्रेड खरीदने गए हो, तो इट इज वेरी हाईली लाइकली कि तुम उसके साथ बटर या जैम कुछ खरीदो। हो सकता है तुम नहीं खरीदो, हो सकता है, बट इट इज वेरी हाईली लाइकली कि तुम खरीदो। खाली ब्रेड लेके क्या करोगे तुम? होता है, यही होता है ना। तो दिस इज व्हाट एसोसिएशन इज। ये हमारा काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चर्न प्रेडिक्टर मैं बताऊं, या लेट्स से हम लोग जो एड्स देखते हैं अपने यूट्यूब पे समथिंग लाइक दैट, इफ यू गो टू सम ई शॉपिंग साइट, तुम वहां पे कुछ सर्च किए, लेट्स से बैट, तो देखते हो कि यूट्यूब पे बैट का ऐड आना शुरू हो गया, इंस्टाग्राम पे बैट का ऐड आना शुरू हो गया। तो तुम जो टास्क वहां परफॉर्म किए कि तुम वहां गए और चेक किए, इट इज वेरी हाईली लाइकली कि तुम खरीदना चाहो उसको। तो द एसोसिएशन ऑफ बाइंग a bat is related to going on to some e-commerce site and actually searching for it. जैसे हम जो एड्स देखते हैं जो हमको टारगेट करता है, इट इज समहाउ एन एग्जांपल ऑफ योर यूज केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। हो सकता है कि तुम बस ऐसे टाइम पास के लिए गए हो, उस पर चेक किए, हो सकता है, बट इट अगर तुम बहुत बड़े डेटा में बात करो, 10 लाख लोग अगर ऐसे कर रहे होंगे, 1 लाख भी तो ऐसे लोग होंगे ना जो एक्चुअल जिनको जरूरत होगा उनका, तभी वो गए, राइट? हर्षिता, मोहम्मद, श्रेया आदि, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? So this is what association is. This is what association is. There is this one more thing which is known as dimensionality reduction. इसमें आता है, but ठीक है, let me. There is one more thing which is known as dimensionality reduction. इसमें क्या होता है, you see कि हमारा एम होता है कि एक इनपुट है, उसे करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मेरे को मिल रहा है, ठीक है? कुछ इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को कुछ आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं ये इनपुट का क्वांटिटी नंबर बढ़ा दूं, 10-15 इनपुट से मेरे को कोई एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? तो हमने जैसे देखा, मैंने लास्ट सेशन में पांडास में जब मैटप्लॉटलिब में बताया था कि इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट कि एक ट्विन उस शहर में होगा या नहीं,
बहुत सारे फीचर्स थे लेकिन सिर्फ कुछ ही फीचर से वो आउटपुट जनरेट हो रहा है। राइट आदि, रिमेम्बर हमने देखा था लीनिएज था, जीन्स था लास्ट सेशन में। यस। अब डेटा सेट में तो सारी चीजें हैं। अगर मैं बताऊं कि मैं तुमको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दूं, उसको तुमको समराइज करना है, इफ यू वांट टू समराइज इट, देयर इज ओनली फ्यू थिंग्स जिससे सेंस बन रहा है, कंटेक्स्ट तुम्हारा बन रहा है। So what our aim is, dimensions are what? There are different features, there are different aspect of a feature. See what are happening is, what are happening is कि you have different dimensions as input, लेकिन हमको सबका काम नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इससे मैप करते हैं कुछ 2 से 3 या फिर कुछ एसेंशियल फीचर्स के से, जिससे हम आउटपुट जनरेट करें। इफ दीज आर योर डायमेंशंस, हो सकता है कि इसका काम नहीं हो, इसका काम नहीं हो, इसका काम नहीं हो। हम सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हम उठा के यूज करेंगे ओनली, सबका हमको काम नहीं है। अब इससे हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लूज हो जाए, कुछ एक्यूरेसी हमारा लूज हो सकता है। अब ऑब्वियसली जो 10 फीचर मिलके आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, 2 फीचर से वो उतना एक्यूरेसी हमको नहीं मिलेगा। बट जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, टेक्स्ट हम जो समराइजर यूज करते हैं, हम जो समरी के लिए यूज करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ का कंटेक्स्ट कुछ और है। समरी से हम क्या करते हैं, वी व्हाट वी डू इज वी withhold most of the information. Remember, I'm using this keyword, most of the information. हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड करना चाहते हैं विदाउट मच लॉस। अब ऑब्वियसली जब हम कुछ फीचर्स को ड्रॉप करेंगे तो कुछ हमको लॉस मिलेगा। हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा हम फीचर को गैदर करके रखें, सो दैट डायमेंशन शुड रिड्यूस इन सच अ वे दैट जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला। जैसे एक और सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक और सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। वी हैव अ वेरी लार्ज इमेज, जस्ट लेट्स से 1024 इंटू 1024 पिक्सल्स का है। ठीक है, 1024 से 1024 पिक्सल्स का है। इफ वी कंप्रेस इट into something as 54 into 54 pixel, this compression, so this is a very nice example of dimensionality reduction. अब ऑब्वियसली जो इसका जो क्लियरनेस है, जितना क्लियर ये इमेज होगा उतना क्लियर ये इमेज नहीं होगा। प्रिटी ऑब्वियस, ये जितना क्लियर रहेगा तुमको दिखेगा, ये उतना नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर इधर मैंने कैट का फोटो है तो इधर भी हमको एक कैट का ही फोटो दिखेगा। ठीक है, ये हो रहा है। ऐसे नहीं होता इधर कैट का हो तो इधर कुछ और हो जाए, ये नहीं होगा। द एसेंशियल थिंग इज कि जो इंफॉर्मेशन हमारा ओरिजिनल ओरिजिनल इमेज में है वही यहाँ पे है। हाँ, ये हो सकता है कि क्लैरिटी अच्छा नहीं हो, उसका साइज रिड्यूस हो गया, जब तुम उसको जूम करोगे तो इमेज फटने लगे, ये हो सकता है। बट एसेंशियली जो कैट का इमेज है वो कैट का ही इमेज रहेगा। राइट, यही होगा। हर्षिता, मोहम्मद, श्रेया, मेक सेंस? गिव मी अ थम्स अप इफ इट मेक सेंस। इतना इजी कर लिया तुम लोग। ऐसे हम वीडियो कंप्रेशन देखते हैं, या फिर लेट्स से तो हम लोग जो रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हैं अपने नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे, यूट्यूब पे, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ योर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो कैसे है, वो मैं तुम लोग पे एक होमवर्क छोड़ता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे है। बिल्ली शेर नहीं बने, हाँ बिल्ली शेर नहीं बनेगा, वो बिल्ली ही रहेगा। लेकिन हो सकता है तुम बिल्ली को जब ऐसे जूम करोगे तो वो इमेज फट के आए, क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं है। जो विस्कर्स तुम देख रहे हो, एक एक को तुम देख सकते हो, वो तुमको क्लियरली नहीं दिखे, तो थोड़ा लॉस हुआ है तुम्हारा। लॉस हमेशा होगा।
लॉस हमेशा होगा, बट योर एम इज टू विथहोल्ड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन विथ वेरी लेस लॉस। हमारा ये एम होता है, ठीक है। तो आई एज्यूम कि थोड़ा सा ये पार्ट भी तुम लोग का क्लियर हो गया। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस थर्ड थिंग। कोई कंफ्यूजन? मोहम्मद, क्लियर है? अब सी लेट्स सी व्हाट दिस थिंग इज, reinforcement learning with this example. Yes, so you have some data. See, it works on feedback, very simple. You have some data, तुम जो नॉर्मल अपना प्रोसीजर कर रहे हो वो तुम करोगे, यू विल गेट सम आउटपुट। अब हो सकता है ये आउटपुट करेक्ट नहीं हो, एक्यूरेट नहीं हो, राइट? ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अगर एक्यूरेट, देखो यहाँ पे दो केस है, इफ इट इज एक्यूरेट और इट कैन बी इनएक्यूरेट। ये दो केस हो सकता है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर फीचर्स, सॉरी दीज आर योर फीडबैक्स। ये तुमने फीडबैक बनाया कि ठीक है, इफ इट इज एक्यूरेट, नाइस फीडबैक, इफ इट इज नॉट अ नाइस फीडबैक। ये तुम वापस से फेच करते हो प्रोसेसिंग में, ये वापस से प्रोसेसिंग में फेच होता है कि अगर एक्यूरेट है तो अच्छी बात, एक्यूरेट नहीं है तो इम्प्रूव ऑन इट। अ वेरी नाइस एग्जांपल इज योर सेल्फ ड्राइविंग कार। जो एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार होता है ना, होता है, इसमें क्या होता है, हम यही करते हैं कि कार तो लगातार चले, लेकिन हो सकता है कभी कभी, हाँ टेस्ला जैसे कभी कभी गाड़ी टकरा जाता है, मतलब पार्किंग वो एक्यूरेटली नहीं कर पाया, तो वो फीडबैक वापस से सिस्टम में फीड होता है एंड दिस सिस्टम अपना एक्यूरेसी उस फीडबैक से इंप्रूव करता है। इज इट क्लियर? तो हम देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। अगर अगर फीडबैक अच्छा है, if there is a good feedback, reward this system with something. If there is not a good feedback, you penalize the system. Bad या poor feedback, something like that. I guess इतना पोर्शन क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मम्मी लोग जब हम लोग बचपन में कुछ सिखाती थी, तो ऐसे बोलती ना ये सीख लो। अगर जैसे हम कुछ अच्छा करते थे, पापा जल्दी से कुछ चॉकलेट या चिप्स कुछ हमको हाथ में दे देते, ये लो एक चॉकलेट, तुमने सही आंसर दिया। होता था, होता था। और गलत आंसर दिए तो चटाक से एक थप्पड़ लग जाता था, होता था ना। तो दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि तुमको लर्निंग कराया जा रहा है, तुम जो आउटपुट दे रहे हो उसके बेसिस पे तुमको फीडबैक दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम रिवॉर्ड और सम पेनल्टी। अच्छा किया, you would get rewarded, अच्छा नहीं किया, you would get penalized. So based on that reward and penalty, तुम अपना during the course of time तुम्हारा accuracy सही होते जाएगा। So I guess this was clear, this was clear। थोड़ा सा जैसे चेस का भी गेम है, चेस में क्या होता है, अगर गलती कर दिया सिस्टम तो उसको अपना कोई ना कोई जो भी उसका कंपोनेंट है वो लूज करना पड़ता है, राइट? किंग है, किंग चला जाएगा, कट जाएगा। कैरम खेल रहे हो, कुछ गलती कर दिए, तुम्हारा जो स्ट्राइकर है वो हिट कर जाएगा उसको, नेट में चला जाएगा, राइट? क्रिकेट में तुम खेल रहे हो, इफ यू आर यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तुम जो एआई बेस्ड वो यू खेलते हैं ना हम लोग गेम्स क्रिकेट का, लैपटॉप पे या फोन में, रीइंफोर्समेंट, a very nice example of reinforcement learning. This is how this entire machine learning thing has been declassified for you. I guess इसके अलावा कोई, हाँ, बाकी तुमको सारी पीपीटी में मिल जाएगा। So let's, I guess आज का जो सेशन था, it was pretty much clear। किसी को कोई confusion in today's session? Do you have any queries? No? जो क्लासिफिकेशन था मैं पीपीटी दे दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो।
अदरवाइज इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है? सुपर क्लियर। कैसे कैसे चीजें हो रही है, मैंने बहुत एकदम डे टू डे एग्जांपल दिया, वेयर थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, कहाँ का यूज केस है, हम कैसे यूज कर रहे हैं। वॉज इट क्लियर? शुड वी वाइंड अप टुडे सेशन? ऑलरेडी 2 घंटा हो गया आज का सेशन, बट मोरलेस ये बताना जरूरी था बिकॉज इसी बेसिस पे हम आगे सब चीज वर्क करेंगे। तो शुड वी वाइंड अप? कोई क्वेरी? हर्षिता, श्रेया, मोहम्मद, शशांक, कोई भी क्वेरी? परफेक्ट। तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आई गेस पेनल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ उल्टा चप्पल, कुछ भी, दैट इज समथिंग तुम्हारा सिस्टम डिसाइड कर रहा है। हमको आज तक पेनल्टी नहीं मिला, हमको घर का खाना नहीं मिलता था। दिस इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर मी। तो पेनल्टी इज समथिंग वी डिफाइन, बट देर इज ऑलवेज अ कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अनसुपरवाइज भी समझ में आ गया आई गेस, सुपरवाइज भी समझ में आ गया। अब हाँ, जहां पे हम मल्टीपल कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे सुपरवाइज अनसुपरवाइज का, वहां पे वी विल कॉल इट अनसुपर सब सुपरवाइज लर्निंग। तो वो समथिंग ऐसे कोई ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं, वो दोनों का हाइब्रिड है। तो आई डोंट थिंक कि उसको हमको फर्दर कोई क्लासिफाई करना चाहिए, बट मोर और लेस आई अज्यूम कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने रिसोर्सेज में कुछ बुक्स रखी हैं तुम लोग के लिए, उस बुक्स में यू कैन एक्चुअली रीड इट आउट। बहुत अच्छे लाइक वेल डिफाइंड मटेरियल है, मैंने आज का भी मटेरियल कहीं से वहां से भी निकाला है। ठीक है, तो मोर लेस आई अज्यूम कि टुडे सेशन वाज क्लियर, लाइक दिस वाज ऑल जो मैंने बताया। यू हैव दिस क्लासिफिकेशन, यू कैन रीड इट। ये मेरा एम नहीं है बताने का, पीपीटी से पढ़ाने का, बट आई अज्यूम कि मेरा जो आज का एम था वो क्लियर हो गया सबको। तो शुड बी वाइंड अप टुडे सेशन? Okay. So let's meet tomorrow. Let's have a session tomorrow with linear regression. We'll discuss everything. We'll first start with for the theory. We'll discuss 50% of our time in mathematics and then we'll implement it. ठीक है, तो कल का भी सेशन would be somewhere around 2 hours. तो संजय, इस वीक पूरा सेशन लगातार होगा ना? हाँ, इस वीक थोड़ा सा मैं रखना चाहता हूँ बिकॉज सी आज ऑलरेडी वेंसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 सेशन विल नीड। ओके ओके। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि तो घर पे जाके फिर से कुछ इंप्लीमेंट करना होगा, दिस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो शुड वी वाइंड अप? परफेक्ट। सो लेट्स मीट टुमारो। कल लेट्स हैव अ पोल कि कितने बजे रखते हैं। आज तो थोड़ा बीच में मीटिंग हो गया था तो मेरे को थोड़ा लेट रखना पड़ा, बट ठीक है, ठीक है, लेट्स मीट टुमारो।